नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिससे पूरी दुनिया ने, खासकर भारत में, रात भर जगाए रखा। जी हां, शुक्रवार को दुनिया ने डिप्लोमेटिक इतिहास का ऐसा नजारा देखा जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध विराम और रेयर अर्थ मिनरल पर डील को लेकर बातचीत के बीच तीखी बहस हुई। ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम से मना करने पर ट्रंप ने कहा कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इस तीखी नोकझोंक के बाद ज़ेलेंस्की बिना समझौते के व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। इस बातचीत पर जी आइए सुनते हैं आखिर इसमें क्या हुआ और उसकी कुछ झलक देखते हैं। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. I said a lot of times that there, thank you accept to that, American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. ये जो आपने अभी देखा और सुना, ये बिग बॉस का हाउस नहीं था बल्कि कूटनीतिक बातचीत थी। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टेलीविजन पर दो राजनीति के अपने अपने प्रेसिडेंट इस तरीके से बातचीत कर रहे थे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बातचीत पर, बहस पर इसके मायने क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ सुमिता करीर जुड़ गई हैं। सुमिता, बताइए इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? जी, ये जो मीटिंग थी इसके ऊपर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि फाइनली अब ऐसा लग रहा था कि एक डील या एक नेगोशिएशन और बातचीत शुरू हो जाएगी यूक्रेन रशिया के बीच में, जो कि ब्रोकर की जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कल जब यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
और यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मिले तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड सीन्स देखने को मिले, शायद जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में कभी देखने को नहीं मिले, एटलीस्ट इन पास्ट 30 इयर्स। और ये पूरे विश्व ने देखा, ये जो बातचीत तीनों लोगों के बीच में हुई, ये रिकॉर्डेड थी, पूरा विश्व इसे देख रहा था और इन साइड्स के बीच में काफी अग्रेशन देखने को मिला, पर्टिकुलरली फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प साइड। उन्होंने एक लाउड वॉइस में और एक स्टर्न वॉइस में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बोला कि आप या तो ये डील कीजिए या फिर हम बाहर हैं। उन्होंने बोला कि you're going to be in big trouble, you're not going to win। उन्होंने बोला you're gambling with World War III, और स्पेशली एक टोन में और टेनर में जो बोला वो काफी कॉन्डिसेंडिंग और अग्रेसिव थी। एक पॉइंट पे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बोलना पड़ा कि you are talking loudly and he had to desist him from talking loudly। उसके बाद ज़ेलेंस्की फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, जब जेडी वैंस ने बोला कि डिप्लोमेसी इज नीडेड टू एंड द वॉर। तो ये काफी गहमा गहमी का जो माहौल था ये इस पूरी बातचीत में रहा ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि काफी टाइम से एक उम्मीद थी कि इस वॉर को एंड करने के लिए एक प्रोसेस शुरू की जाएगी, एक पीस डील अराइव होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो कैंपेन कर रहे हैं तब से बोला था कि वो इस वॉर को रुकवा देंगे और बहुत जल्द रुकवा देंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देंगे। उनका कैंपेन पिच भी था और जब से वो प्रेसिडेंट बने भी हैं तब भी उन्होंने बोला है कि बोथ साइड्स शुड कम एंड वी नीड पीस एटसेट्रा एटसेट्रा। और अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल्स और रशियन ऑफिशियल्स मिले थे सऊदी अरेबिया में, और तब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने काफी प्रोटेस्ट किया था कि बिना यूक्रेन के बातचीत में इन्वॉल्व हुए कोई भी पीस डील अराइव नहीं हो सकती। तब यूरोपियन लीडर्स ने भी काफी सपोर्ट किया था यूक्रेन को और काफी एक एंटागोनिस्टिक माहौल बन गया था, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स का व्यू पॉइंट जो था वो नहीं रखा जा रहा था ये यूक्रेन रशिया की पूरी बातचीत के अंदर। और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई कि फाइनली वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। हाउएवर दैट टॉक डिड नॉट रियली गो डाउन वेरी वेल। उसके बाद हमने देखा है कि रिएक्शंस आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पे, जहां पे उन्होंने बोला कि काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, मीनिंगफुल मीटिंग हुई, मच वाज लर्न्ड व्हिच कुड नेवर बी अंडरस्टूड विदाउट कन्वर्सेशन अंडर सच फायर एंड प्रेशर। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप ऑफिशियल मार्को रूबियो ने एक अपॉलॉजी मांगी है यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, क्योंकि बार बार जैसे डोनाल्ड ट्रंप उस मीटिंग में बोल रहे थे यू आर इंसल्टिंग द पीपल ऑफ अमेरिका। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं, और अगर नेगोशिएशन पॉसिबल होगी या एक मीटिंग पॉसिबल होगी तो वो कब पॉसिबल होगी। क्योंकि अभी जो है पूरे जो वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर्स है, स्पेशली यूरोपियन लीडर्स, चाहे आप किसी भी लीडर को देख लें, पोलैंड को देख लें, बाकी अदर कंट्रीज भी हैं, उन्होंने भी यूक्रेन का सपोर्ट किया है और इस बिहेवियर को कंडेम किया है। गेटिंग पीस इन यूक्रेन, लाइक आई सेड, इट्स बीन प्राइम मिनिस्टर, बीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स की एजेंडा, especially when he was campaigning and when he came to power. How he manages that will be the tricky part, and which is something that we need to see. शुक्रिया सुमिता इसको विस्तार से समझाने के लिए, लेकिन ये जो हमने देखा है उसको पचाना समझना शायद काफ़ी दिन लगेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।